Good morning and Jain friends. Welcome to Exam Buddies, partners in your success. Let's test your vocabulary. Can you tell me the meaning of these three words? The sequestration, slacking, and stalker? If not, don't worry. By the end of this video, you'll not only know their meaning but also learn how to use them confidently in exams and daily conversation. So let's begin. The first word is pessimist. Pessimist means tending to see the word aspect of the things negative or outlook nirashawadi. So pessimist means negative, gloomy and cyclical and defeatic. So एक बार और रिवाइज करेंगे. पेसिमिस्ट मीन्स नेगेटिव, ग्लूमी, सिक्लिकल और डिफेस्टिस्ट. एंटोनिम इज optimistic, positive, and hopeful. His pessimist view on the economy was widely discussed. अर्थव्यवस्था पर उसका निराशावादी दृष्टिकोण व्यापक रूप से चर्चा का विषय था. Next word is plenary. Plenary means a meeting or session attended by all the members of a group, especially a legislative body. So, synonym says plenary means full, complete, all inclusive. Antonym is partial और incomplete. जो चीज complete है उसका एंटोनिम क्या होगा? partial या incomplete. So plenary means जो full है, complete है, all inclusive है. यूसेज इसका होगा The plenary session was held to discuss the final draft of the policy. Next word, ploy. Ploy means a cunning plan or a tactic used to gain an advantage. चाल या चालाकी. So, ploy, the synonyms of the ploy is scheme, tactics, maneuver or stratagem. Once again, ploy means scheme, tactics, maneuver and stratagem. Antonym is honesty, frankness, straightforwardness. The politician used a clever ploy to win the election. Next word is portable. Portable means safe to drink, drinkable. So, portable water आपने सुना होगा. पोर्टेबल मीन्स ड्रिंकेबल, जिसे आप पी सकते हैं. सेफ, कंज्यूमेबल, जिसका आप कंजप्शन कर सकते हैं. एंड क्लीन. So antonyms will be undrinkable, polluted, and contaminated. Usage: the river water was purified to make it potable. उसे पीने लायक बनाने के लिए. Prevailed. Prevail means to be victorious or dominant, to prove more powerful or superior. The synonyms will be trump, succeed, conquer, and dominate. Once again, prevail means trumpet, succeed, conquer, and dominate. Antonym is जीत का क्या हो जाएगा? फेल, लूज, सरेंडर. सो जस्टिस विल प्रिवेल इन द एंड. अंत में न्याय की विजय होगी. नेक्स्ट वर्ड इज promenade. Promenades means a leisurely walk or stroll, especially one taken in a public place. जो public place में आप शेयर करते हैं उसे बोलते हैं promenades. So promenades means walk, stroll, parade and procession. Antonyms is rush and hurry.
They enjoyed evening promenades along with beach. Next word, pulverize. Pulverize. Pulverize means to crush or grind into a powder or dust to completely destroy. ठीक है, दो मीनिंग इसके होंगे. एक तो आपने देखा होगा पल्वराइजर आता है, जो घर पे हम अपने वीट या गेहूं वगैरह को इनको पीसने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, फ्लोर बनाने के लिए, आटा बनाने के लिए. पल्वराइजर आता है जिसका काम क्या होता है, पल्वराइजर इसका क्रश करना. तो यहाँ भी सेम मीनिंग है, आप को रिलेट कर सकते हो. सो पल्वराइजर मीन्स टू क्रश और ग्राइंड इनटू अ पाउडर, और अनदर मीनिंग इज टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, किसी चीज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना. सो सिनोनिम्स विल बी crush. Pulverizer means crush, grind, smash and destroy. Antonym will be, antonym is preserve, करके रखना, build करना, create करना. The machine is used to pulverize the rocks into dust. रॉक से डस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मशीन लाई गई है. क्विंटल. क्विंटल मीन्स a unit of weight equal to 100 kilograms. So 100th weight. The farmer sold 10 quintal of wheat in a market. Next word, resist. Resist means showing or feeling discrimination based on a race. नस्लवादी. ठीक है, भेद करना, नस्ल का भेद करना. So next word is, synonyms is, racist means discriminatory, prejudiced. Antonym is fair, unbiased. His racist comments sparked outrage. And next word is rankle. Rankle means to cause persistent irritation or resentment. Rankle means to cause persistent irritation or resentment, चिढ़ाना या खटकना. So rankle means, synonyms of rankle is irritate, annoy and vex. Antonym is soothe, comfort and calm. His rude remarks still rankles me. उसके जो गलत रिमार्क्स या खराब टिप्पणियां अभी भी मुझे खटक रही हैं. रेसिप्रोकेट. Reciprocate means to give in return, response to an action or feeling. आप प्रत्युत्तर देना, बदले में किसी चीज को वापस करना. So reciprocate means return, repay, recompense. Antonym is withhold and ignore. He reciprocated her feelings with equal enthusiasm. जितने उत्साह से सामने वाले ने बताया, उसी उत्साह के साथ अपनी फीलिंग बताई गई. नेक्स्ट वर्ड इज redemption. Redemption means the action of savings or being saved from a sin or error. Synonyms is salvation, deliverance and reclamation. Antonym of redemption is condemnation and damnation. The story is about the redemption of a lost soul. कहानी एक खोई हुई आत्मा के उद्धार के बारे में है. अभी भी आप कहानियां सुनते हैं कि नहीं? नहीं सुनती हैं तो स्टार्ट करिए, आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प करेगी. सो नेक्स्ट वर्ड इज रिजिगिंग. रिजिगिंग मीन्स to rearrange or reorganize, पुनः व्यवस्थित करना. So rejigging means rearranging, restructuring. Antonym is disorganizing, scattering. The company is rejigging its marketing. कंपनी ने अपनी मार्केटिंग रणनीति को पुनः व्यवस्थित किया या कर रही है. Next word is reluctance. Reluctance means
अनविलिंगनेस और हेजिटेशन टू डू समथिंग, अनिच्छा और हिचकिचाहट. So reluctance means unwillingness, hesitation and resistance. Antonym is willingness, eagerness and readiness. He showed reluctance to accept the proposal. उसने प्रस्ताव को स्वीकार करने में अनिच्छा दिखाई. Next word is repose. Repose means to reset or relax. Repose का synonyms हो जाएगा rest, relax and recline. आप जब रेस्ट रूम में जाते हैं कहीं स्पेशली ट्रेन से ट्रैवल या रेलवे स्टेशन पे देखते हैं रिक्लाइनर सीट्स मिलती है, या तो मूवी देखने जाते हैं वहां पे भी आपको रिक्लाइन सीट मिलती है. किस लिए? ताकि आप रिलैक्स्ड वे में रेस्ट कर पाए, आराम से आपको रेस्ट मिले, इसलिए. सो रिपोज का एंटोनिम होगा वर्क, टॉयल एंड एक्सर्ट. आफ्टर अ लॉन्ग डे शी रिपोज्ड ऑन द सोफा. लंबे दिनों के बाद उसने सोफे पर आराम किया. नेक्स्ट वर्ड इज reprisal. Reprisal means retaliation or revenge for an inquiry or wrong. प्रतिरोध या बदला. तो सिनोनिम्स हो जाएगा reprisal का सिनोनिम्स हो जाएगा retaliation, vengeance and retribution. एक बार और आप रिवाइज कर सकते हैं. Reprisal means retaliation, vengeance and retribution. Antonym is forgiveness, reconciliation and pardon. माफ कर देना. कैसे यूज करेंगे वर्ड में? The attack was a reprisal for the earlier ambush. इससे पहले जो अम्बुश किया गया था, छुप के हम पे हमला किया गया था, उसका ये बदला है, प्रतिरोध है. नेक्स्ट वर्ड इज reticence. Reticence means the quality of being reserved or reluctant to speak. Synonyms of reticence is silence, reserve and shyness. Antonym is openness, talkativeness and frankness. Her reticence made it hard to know what she was thinking. उसकी चुप्पी के कारण यह जानना मुश्किल था कि वह क्या सोच रही थी. Next word is retrogression. Retrogression means the process of moving backward or declining. पतन या पीछे हटना. Retrogression means पतन या पीछे हटना. Synonyms हो जाएंगे regression, decline and reversal. Antonym is progression, advancement and improvement. आप जैसे ही इस वीडियोस को 1 से 2 बार देखेंगे, आप अपने आप में देखेंगे कि आपका प्रोग्रेशन हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है आपके वोकैब का, आपका वोकैब इम्प्रूव हो रहा है. ठीक है, ना कि रेट्रोग्रेशन हो रहा है. अगर हम पढ़ाई करना छोड़ दें या तो क्या होगा? हमारा रेट्रोग्रेशन होगा, पतन होगा, एडवांसमेंट नहीं हो पाएगा. ये चीज आप जानते हैं, इसलिए आप इसको वीडियो को पहले एक बार देखेंगे, फिर दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या नहीं आता है और उन वर्ड को नोट डाउन कर लेंगे फॉर फर्दर रिविजन. नेक्स्ट वर्ड इज रिवेंचिस्ट. सो रिवेंचिस्ट मीन्स seeking to retaliate or regain lost territory. प्रतिरोधी, जवाबी हमला. तो रिवेंचिस्ट मतलब रिवेंज से आया है ना, रिवेंज लेना, तो वैसे ही रिवेंचिस्ट जो बदला लेता है. ठीक है, तो रिवेंचिस्ट मीन्स रिटेलिएटरी, वेंजेटफुल एंड रिविजनिस्ट. एंटोनिम्स का क्या हो जाएगा? फॉरगिविंग एंड अपीजिंग.
जो माफ करने वाला है, उदार दिल वाला है। The leader adopted a revanchist policy to reclaim lost land. नेताओं ने खोई जमीन को वापस पाने के लिए प्रतिरोधी नीति अपनाई। अगर हमें हमारा अक्षय चिन्ह चाहिए या पीओके चाहिए तो हमें भी यही करना होगा, और उसके लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसके प्लान को एक बार ट्रस्ट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है, एंड आई मे बी रॉन्ग। मैं यहाँ पे पॉलिटिशियन बनने की कोशिश नहीं कर रहा, पर मुझे लग रहा है अगर कोई उस डायरेक्शन में थोड़ा भी काम कर रहा है तो उससे सपोर्ट चाहिए। मैं इस वे में पॉजिटिव ले रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज रिगर्ड। रिगर्ड मीन्स set off unfairly or dishonestly to ensure a specific outcome. धांधली किया हुआ या बेईमानी से तैयार। So rigged means manipulated, fixed and falsified. जिसी चीज को मैनिपुलेट किया गया है, थोड़ा करेक्ट किया गया है, ठीक है, तो इसका क्या, इसमें मतलब बेईमानी हुई है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा फेयर, जो बिल्कुल फेयर है, इम्पार्शियल है, ऑनेस्ट है, जिसमें कुछ गलत नहीं हुआ। द ऑपोजिशन क्लेम द इलेक्शन वॉज रिग्ड। ठीक है, उनको लग रहा है भाई मैं नहीं जीता तो कोई ना कोई बेईमानी हुई है। नेक्स्ट वर्ड इज रडरलेस। सो रडरलेस मीन्स लैकिंग डायरेक्शन। जब बोट आप देखेंगे, बोट में रडर होता है पीछे वाला, तो उसका काम क्या होता है? डायरेक्शन दिखाने का, बोट को किस डायरेक्शन में आपको लेके जाना है। तो यहाँ पे सेम रडरलेस का मतलब जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। सो लैकिंग डायरेक्शन, पर्पस और कंट्रोल। सो रडरलेस का मीन्स एमलेस, डायरेक्शनलेस एंड अनकंट्रोल्ड। एंटोनिम इसका हो जाएगा फोकस्ड, गाइडेड एंड पर्पसफुल। जैसे आपने सोच लिया मेरा पर्पस है अपने वोकैब को स्ट्रेंथन करना, और एग्जामिनेशन में जो इजी पॉइंट्स हैं इनको मैं मैक्सिमम रिवाइज करूं। ठीक है अपना, और जो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है या हो भी, तो आपको जो एग्जाम में वर्ड आएंगे वो थोड़ा हट के आएंगे, थोड़े डिफिकल्ट आएंगे। जो रेगुलर यूज में आते हैं वो वर्ड नहीं आएंगे। उसमें ये वर्ड नहीं आएगा विक्ट्री का सिनोनिम्स बताइए, है ना, उसमें थोड़े डिफिकल्ट वर्ड आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो मुझे पता है आप तैयारी करेंगे। आप नेक्स्ट वर्ड इज salience. Salience means the quality of being particularly noticeable or important. So synonyms इसका हो जाएगा salient. Salience means prominence, important and significant. प्रमुख या महत्वपूर्ण। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका उल्टा। अगर कोई प्रोमिनेंस है, इंपॉर्टेंट है या सिग्निफिकेंस है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंस, ऑब्सक्यूरिटी एंड ट्रिवियलिटी। कोई महत्व नहीं, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। तो एंटोनिम इसका यूसेज ऐसे हो जाएगा, द सैलियंस ऑफ द इशू वाज डिस्कस्ड एट द लेंथ। मुद्दे की प्रमुखता पर विस्तार से चर्चा की गई। नेक्स्ट वर्ड इज सैंक्शंस। यूएसए बार बार सैंक्शन लगा देता है, तो क्या है? किसी भी कंट्री पे, ठीक है ना। तो सैंक्शंस मीन्स पेनल्टीज और मेजर्स इम्पोज टू इन्फोर्स लॉ एंड रूल्स। तो ये लोग क्यों करते हैं? टू शो हिज सुप्रीमेसी। तो दुनिया में किसी को भी ज्यादा सुपीरियर नहीं बनने देना चाहिए। बनने देंगे तो आपके सिर पे नाचेगा। तो सैंक्शंस मीन्स हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन, पेनल्टीज एंड एम्बार्गोज। एंटोनिम हो जाएगा रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव्स एंड अलाउंस। द
Economic sanctions were imposed on the country for its action. यूएस क्या कर रहा है? जो भी रशिया का तेल खरीदेगा मैं उस पे सैंक्शन लगाऊंगा, यूएसए का कहना है। तो हमें ज़्यादा इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस आगे बढ़ना है। नेक्स्ट वर्ड हमारा सैनिटेशन। ये काफ़ी इजी वर्ड है। सैनिटेशन मीन्स मेजर्स टू मेंटेन हाइजीन एंड प्रिवेंट डिसीज। स्वच्छता, सफाई। सिनोनिम्स हो जाएगा क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड सैनिटेशन सिस्टम। हमारा एंटोनिम हो जाएगा filthy, dirtiness and contamination. So improved sanitation reduce the spread of disease. आप बेहतर स्वच्छता रखेंगे तो बीमारियों को हम फैलने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज scarcity. Scarcity means a state of being in short supply or lacking. Means shortage, insignificance and paucity. इस वर्ड को आप थोड़ा अच्छे से देखेंगे ताकि आपको ध्यान रहे। paucity ज़्यादा यूज कॉमनली होता नहीं पर सेम मीनिंग है। paucity मीन्स scarcity, insufficiency और shortage. So अंटोनिम हो जाएगा abundance, बहुत सारा, surplus and plenty. The scarcity of water is a major issue in many regions. जैसे हम एक अच्छी अर्बन प्लानिंग, अच्छा रिवर सिस्टम को कनेक्ट करके हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। स्किज्म। स्किज्म मीन्स ए डिविजन और स्प्लिट विद इन अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स विभाजन या फूट। स्किज्म मीन्स सिनोनिम्स ऑफ स्किज्म हो जाएगा। आपको हमारा जो मेन वर्ड है स्किज्म है, तो इसे आपको ध्यान रखना होगा, जिसके लिए जो हमें याद रखना है। बाकी इजी वर्ड है, ठीक है। दूसरे वर्ड पे फोकस नहीं करना है, इस पे करना है। स्किज्म मीन्स डिविजन, स्प्लिट एंड रिफ्ट। एंटोनिम्स ऑफ स्किज्म हो जाएगा यूनिटी, हार्मोनी एंड एग्रीमेंट। इसका ऑपोजिट जो ऊपर मेंशन है, यूनिटी, हार्मोनी एंड एग्रीमेंट। द स्किज्म, ये है हमारा मेन वर्ड। द स्किज्म विद इन द पॉलिटिकल पार्टी वीकेंड इट्स इन्फ्लुएंस। राजनीतिक दलों के लिए भीतर से फूट उसकी प्रभावशीलता को कमजोर कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड इज स्कफल। स्कफल मीन्स a short, confused fight and struggle, झगड़ा या संघर्ष। तो स्कफल का सिनोनिम्स हो जाएगा brawl, tussle and fight. Antonym of scuffle means, antonym उसका हो जाएगा peace, harmony and truce. There was a scuffle between the two groups at the rally. रैली में दोनों समूह के बीच में झगड़ा हुआ। Sedition. So sedition means conduct or speech inciting rebellion against authority. authority के राजद्रोह या विद्रोह करना। तो rebellion and subversion and insurrection, इसे बोलेंगे sedition. आपने बोला ना sedition, कई बार आप न्यूज में सुनते होंगे sedition चार्जेस लगे हैं, विद्रोह के चार्जेस लगे हैं। So rebellion, subversion and insurrection, ये हो गया हमारा सिनो। इसका अंटो हो जाएगा लॉयल्टी, ओबेडियंस एंड कंप्लायंस। किसी चीज को मानने वाला, लॉयल, ओबे करने वाला, रूल पे चलने वाला। तो गवर्नमेंट चार्ज्ड द एक्टिविस्ट विथ सेडिशन। सरकार ने कार्यकर्ताओं पर राजद्रोह का आरोप लगाया। अब हमारा वर्ड आता है सिक्वेस्ट्रेशन, जिसका इंतजार आप अभी तक कर रहे थे। काफी इजी वर्ड है अगर आप इसके मीनिंग को समझेंगे तो। सो सिक्वेस्ट्रेशन मीन्स द एक्ट ऑफ आइसोलेटिंग और सेटिंग अपार्ट। पृथक करना, अलगाव करना। आइसोलेट करना किसी चीज को, सेग्रीगेट करना या सेपरेट करना।
तो चाइना की पॉलिसी क्या रहता है, छोटे छोटे जो उसके अगल बगल के हैं उन्हें सेपरेट करो, किसी और बड़े नेशन से उनका टाइस मत होने दो, ताकि उन्हें कहीं से बूस्ट मिले, बल मिले या हेल्प मिले। ठीक है, तो हमारा एंटोनिम हो जाएगा, सिक्वेस्ट्रेशन का एंटोनिम होगा इंटीग्रेशन, यूनियन एंड इंक्लूजन। द सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ फंड्स वाज नेसेसरी फॉर द प्रोजेक्ट। परियोजना के लिए धन का पृथक्करण आवश्यक था। नेक्स्ट वर्ड इज सेवेज, सीवेज। सीवेज मीन्स वेस्ट वाटर और वेस्ट मैटर कैरिड ऑफ इन सीवर्स। जो हम नालियों में गंदा पानी जो जाता है उसे वो क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वेस्ट, इन्फ्लुएंट एंड स्लग्ड। ठीक है, स्लग्ड, इन्फ्लुएंट एंड वेस्ट उसे बोलेंगे सीवेज का सिनोनिम। इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लीन वाटर एंड प्योरिटी। So the city needs to improve its sewage system to prevent contamination. Next word is shed. थोड़ा इजी लग रहा है। shed means a small building used to store or shelter, मतलब भंडारण या शेड, छांव। So synonyms इसका हो जाएगा outbuilding, hut and shelter. Antonym is mansion or house, means बड़ा घर। The tools were stored in a small shed in a garden. औजारों को बगीचे में एक छोटे से शेड में रखा गया। Next word is showdown. Showdown means a final confrontation of dispute. अंतिम संघर्ष या मुकाबला। अभी लग रहा है कि मुझे जो समझ लग रहा है कि जो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट हैं उनका शोडाउन चल रहा है। उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया गया है 11 अगस्त को, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इस इवेंट को। ये एक अच्छा हिस्टोरिकल मोमेंट होने वाला है बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा बलूचिस्तान को ऑन देयर इंडिपेंडेंस डे। हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा शो डाउन का कन्फ्रंटेशन, शो डाउन एंड बैटल। एंटोनिम इज reconciliation, agreement and truce. The showdown between the two teams were intense. Between Balochistan and Pakistan is intense. Silt. Next word is silt. Silt means fine sand, clay or other material carried by running water. जो कीचड़ के या मिट्टी है, पानी के साथ जो आता है साथ में, तो उसे बोलते हैं सिल्ट। सिनोनिम्स होगा मड, क्ले एंड सेडिमेंट्स। एंटोनिम हो जाएगा रॉक या ग्रेवल। जो हार्ड है और जो सॉफ्ट है उसे सिल्ट बोलेंगे, जो हार्ड है रॉक या ग्रेवल बोलेंगे। द रिवर बेड्स वर फील्ड विद सिल्ट आफ्टर द फ्लड्स। नेक्स्ट वर्ड इज स्लैकिंग। जिस वर्ड को आप वेट कर रहे थे वो वर्ड आ गया है, स्लैकिंग। स्लैकिंग मीन्स टू बी लेजी और टू अवॉइड वर्क, आलस्य करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, स्लैकिंग का सिनोनिम होगा सिर्किंग, आइडलिंग एंड प्रोकास्टिनेटिंग, आलस्य करना। ठीक है, सो एंटोनिम हो जाएगा स्लैकिंग का वर्किंग, स्ट्राइविंग या लेबरिंग, बहुत मेहनत करना। सो स्टॉप स्लैकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। आलस्य करना बंद करो और काम पे ध्यान दो। अगला वर्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं वही था। नेक्स्ट वर्ड इज सोलमन। सो solemn means serious and earnest in the matter or appearance. So solemn means serious, earnest and grave. इसका एंटोनिम हो जाएगा लाइट हार्टेड, हल्का, केयर फ्री, ज्यादा चिंता नहीं करने वाला, हैप्पी, जो खुश है। द सेरेमनी वॉज solemn एंड रिस्पेक्टफुल। यहाँ पे एन साइलेंट है, इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, समारोह गंभीर और सम्मानजनक था।
नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रू, ये भी अच्छा वर्ड है, SKEW, स्क्यू। स्क्यू मीन्स टू अल्टर और डिस्टॉर्ट समथिंग इन अनफेयर वे, गलत तरीके से किसी चीज को विकृत करना, मोड़ना, तोड़ना, फोड़ना। सो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्टॉर्ट, स्लैंट और ट्विस्ट। एंटोनिम हो जाएगा align, straighten and balance. The survey results were skewed by biased questions. Next word is sparring. So sparring means engaging in a practice fight or argument. So तकरार करना, हल्का संघर्ष होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा sparring means fighting, bickering and arguing. एंटोनिम हो जाएगा cooperating and agreeing. They were sparring over a trivial matter. Next word, spectre. Spectre means a ghost or something that haunts, भूत प्रेत, जो आपको एक तरीके से हॉन्ट करता है, डराता है। सो सिनोनिम्स ऑफ स्पेक्टर हो जाएगा घोस्ट, स्पिरिट और एपेरिशन। एंटोनिम हो जाएगा लिविंग बीइंग, जो लिविंग है या रियलिटी है। द स्पेक्टर ऑफ वॉर लूम्ड ओवर द नेगोशिएशन, युद्ध का प्रेत वार्ता पर मंडरा रहा था। स्पर्ट, नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पर्ट। सो स्पर्ट मीन्स अ सडन एंड शॉर्ट बर्स्ट और फ्लो। तो उसे बोलेंगे सर्ज, बर्स्ट या रश, विस्फोट या प्रवाह एक तरीके से। सो स्पर्ट मीन्स ट्रिकल एंड ड्रिप। देयर वाज अ सडन स्पर्ट ऑफ एक्टिविटी इन द मार्केट, बाजार में अचानक गतिविधियों का विस्फोट हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेलमेट। चेस में आप देखते होंगे सिचुएशन वेयर नो वन विन्स, या गतिरोध, सिचुएशन वेयर नाइदर साइड कैन विन और मेक प्रोग्रेस, जिसे बोलते हैं इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डेडलॉक, इम्पास एंड स्टैंड ऑफ। एंटोनिम्स हो जाएगा ब्रेक थ्रू, कोई रास्ता मिल गया, या प्रोग्रेस, थोड़ा रुकावट दूर हुई, प्रोग्रेस, हम कहानी आगे बढ़ी। The negotiations reached a stalemate after several rounds. Next word is standoff. Standoff means a situation in which neither side wins and gains an advantage. टकराव। तो उसे क्या synonyms हो जाएगा? Standoff means deadlock, standstill situation और confrontation, आमना सामना होना। एंटोनिम हो जाएगा resolution और agreement। तो जैसे स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, बाद में क्या हो गया? अग्रीमेंट हुआ, रेजोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो स्टैंड ऑफ कंटिन्यू फॉर सेवरल आवर्स बिफोर एन अग्रीमेंट वाज रीच्ड। एंड नेक्स्ट जो हमारा आज का लास्ट वर्ड है इज स्टार्कर। स्टार्कर मीन्स कंप्लीट, क्लियर एंड विदाउट एनी वेरिएशन, जिसे बोलते हैं स्पष्ट या कठोर। तो स्टार्कर मीन्स क्लियर, ऑब्वियस एंड स्टार्क। इसका एंटोनिम हो जाएगा वेग, ब्लर्ड एंड इनडिस्टिंक्ट। जो वेग है, थोड़ा ब्लर है, जो क्लियर नहीं दिख रहा है, इनडिस्टिंक्ट है, ठीक है, जिसे आप पहचान नहीं पा रहे। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू सिटीज वाज स्टार्कर देन एवर। थैंक यू for watching till end. Please revise this video twice and thereafter mark the difficult words, and this will improve your vocab. So see you in the next video. Jai Hind, Jai Bharat.